Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 6, Subject History, Lesson number 11, Ancient India and the World. So let's start. Ancient India and the World. This topic we will divide into two subtopics. First one is India and the countries of the West, and second one India and other countries in Asia. So let's see the first one, India and the countries of the West, Bharat or Pashchimi Desh. People of the Harappan civilization had developed trade relations with the countries of the West. Ever since then, India has had economic and cultural exchanges with the outside world. Buddhism has spread to Afghanistan and to many countries of Central Asia. During the period of Iranian Empire, India's contact with the Western world increased. Now, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रस्थापित किए थे। तभी से भारत का बाहरी विश्व से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ या शुरू हुआ था। अब बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों में हुआ था। ईरानी साम्राज्य के कालखंड में भी भारत का पश्चिमी विश्व से संपर्क बढ़ने लगा था। Now the Greek historians of that period grew more curious about India. और जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उस समय के, उस पीरियड के, राइट, तो जो इतिहासकार थे, तो भारत के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ी। Their writings introduced India to the Western world. और उन इतिहासकारों ने अपने लेखनी में भारत को दूसरे देशों से भी, मतलब दुनिया के दूसरे देशों से भी उनका इंडिया का परिचय, भारत का परिचय करवाया। The routes which were later used by Alexander were opened for trade between India and countries of the West. भारत के विषय में उन्होंने जो लेखन किया उसके द्वारा पश्चिमी देशों को भारत का परिचय हुआ और कालांतर में जिस मार्ग से सिकंदर आया था, राइट, अलेक्जेंडर जिस मार्ग से भारत में आया था, वे मार्ग भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार के लिए खुल गए। Now, under the influence of the Greek art of sculpture, a new form of art emerged in India during the Kushana period. It is called Gandhara School of Art. In the Gandhara art school, images of Gautam Buddha were mainly carved. As these images were mostly found in the Gandhara region of Afghanistan, the style is called the Gandhara style. Right? So, कालांतर में जिस मार्ग से अलेक्जेंडर भारत में आया था, सो वो मार्ग खुला हो गया व्यापार के लिए, और कुशानु के कार्यकाल में ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ और उसे ही गांधार शैली कहते हैं। now गांधार शैली में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियां गढ़ी गई। ये मूर्तियां मुख्य रूप से, राइट, अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गई है, अतः इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। ओके, you can see here in this picture a statue of Gautam Buddha in a museum, right? The facial features of statues made in this style are similar to those of the Greek people. The early coins that were minted in India were also like Greek coins, right? So इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियां जो है उसके चेहरे के आकार, राइट, और प्रकार जो यूनानी मीन्स जो ग्रीक लोग है, ग्रीक पीपल है, उनके चेहरे से मिलते जुलते हैं। भारत में प्रारंभिक सिक्के जो थे, राइट, जो ग्रीक कॉइन्स थे, राइट, सो उनके आधार पर ही डाले गए थे। अराउंड द 1st or 2nd century CE, trade between India and Rome flourished. The ports in South India also had a large share in this trade. Some articles made of bronze were found in excavations at Kolhapur. They have been made in Rome. The excavations
at Arikmedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. Both these places were important centers of trade between India and Rome. Many such trade centers are mentioned in the literature of those times. Okay. Now, ईसवी सन पहली या दूसरी शताब्दी के कालखंड में, राइट, भारत और रोम के बीच में जो व्यवहार है वो समृद्ध हुआ। इस व्यापार में दक्षिण भारत के बंदरगाहों का बहुत बड़ा योगदान था। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए उत्खनन में कांस्य धातु से बनी हुई कुछ वस्तुएं पाई गई। ये वस्तुएं रोमन बनावट की है, राइट। सो इससे पता चलता है कि इंडिया और रोम के बीच में, राइट, संबंध है, राइट। सो तमिलनाडु के आरिकमेडु नामक स्थान पर हुए उत्खनन में भी रोमन बनावट की वस्तुएं पाई गई। ये दोनों स्थान भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। Alexandria was an important port in Egypt. The Arab merchants carried Indian goods up to Alexandria. From there, they were sent to the countries in Europe. Now, जो केंद्रों का उल्लेखने में हमें प्राप्त होता है। सो इस व्यापार में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह का बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। सो अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया तक ले जाते थे और वहां से वह माल यूरोप के देशों में भेजा जाता था। Now, besides Indian goods, the Arabs also conveyed Indian philosophy and science to Europe. The concept of zero is one of the India's major contributions to the world. It was the Arabs who introduced this Indian concept to Europe. Okay. Now, अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया तक ले जाते थे। नाउ अरब के लोगों ने भारतीय वस्तुओं के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी यूरोप तक पहुंचाया। नाउ गणित की जो शून्य की संकल्पना है, राइट, सो भारत का विश्व को दिया हुआ वह एक वरदान ही है। अरब लोगों ने इस संकल्पना का परिचय पश्चिमी यूरोप से कराया। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देश। Many countries in Asia were greatly influenced by the Indian culture of these times. Now, एशिया के अनेक देशों पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। ओके, इन दैट फर्स्ट वन इज श्रीलंका। नाउ श्रीलंका के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने, राइट, अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा, राइट, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, राइट। सो लेट्स सी द श्रीलंका, अबाउट श्रीलंका। King Ashoka had sent his son Mahendra and the daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. So हमने ये previous lesson में ये पढ़ा है, right? Their names are mentioned in the Buddhist text Mahavansa, right, written in Sri Lanka. Now Sanghamitra carried a branch of the Bodhi tree with her. The Sri Lankan tradition believes that the Bodhi tree at Anuradhapur in Sri Lanka has grown from the same branch. Now संघमित्रा को संघमित्रा, राइट, और उसका जो सन था महेंद्र, राइट, सो उन दोनों को बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था, राइट। सो संघमित्रा ने अपने साथ बोधि वृक्ष की जो टहनी है, ब्रांच है, वो ले गई थी। और श्रीलंका के अनुराधपुर में बोधि वृक्ष है और वहां की परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि वह बोधि वृक्ष की इस टहनी से बड़ा हुआ है। There was a great demand in India for Sri Lankan pearls and other precious stones. In the 5th century CE, King Kashyap had caves dug out at a place called Sigiriya.
ओके। नाउ श्रीलंका के मोती तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भारत में बड़ी मात्रा में मांग थी। वहां के सिगिरिया नामक स्थान पर ईसा 5वीं शताब्दी में कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई थी। उन गुफाओं में भित्ति चित्रों की शैली अजिंठा की चित्र शैली के साथ साम्य दर्शाती है। द वॉल पेंटिंग्स इन दीज केव्स bear resemblance to the paintings in Ajanta caves, right? The Sri Lankan Buddhist work Devamsa and Mahavansa provide information about the close relation between India and Sri Lanka. They are written in Pali language. Okay, उन गुफाओं में भित्ति चित्रों और शैली और अजिंता की चित्र शैली के साथ साम्य दर्शाती है। ना श्रीलंका के महावंश और दीपवंश राइट ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच पारंपरिक संबंधों की जानकारी देते हैं। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट, चाइना एंड अदर कंट्रीज। राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स इंडिया एंड चाइना हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस। एम्परर हर्षवर्धन हैड एवर सेंट एन एम्बेसडर टू चाइनीज कोर्ट. Chinese silk was known as China Chananshuka, right, and was a great demand in India. Now चीन और अन्य देश प्राचीन भारत से प्राचीन समय से भारत और चीन के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित हुए थे। सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में अपना जो राजदूत भेजा हुआ था। now चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र का भारत में चीनांशुक कहते हैं, राइट। सो भारत में चीनांशुक की बड़ी मांग थी। प्राचीन भारत के व्यापारी यह चीनांशुक पश्चिमी देशों में बेचते थे। वह व्यापार सड़क मार्ग से होता है। इस मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। फर्स्ट लेसन में ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। द मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया supplied Chinese silk to Western countries. The land route by which the silk trade was carried on was called the Silk Route और उसे Silk Route कहा जाता है। फर्स्ट लेसन में हमने देखा था। Now, some ancient places in India were connected to this route. Nalasopara near Mumbai in Maharashtra was one such place. The Chinese Buddhist bhikshu Fa Hen and Yuanchong also came to India through this Silk Route. और जो बौद्ध भिक्षुस थे, राइट। सो फाहेन और योनचोंग जो चाइना से आए थे इंडिया में, सो इसी रूट से सिल्क रूट से वो इंडिया में आए थे। इन द 4th century CE, the Ming Emperor of China invited the Buddhist bhikshus Dharmarakshaka and कश्यप मटंगा टू चाइना। नाउ ईस्वी सन प्रथम शताब्दी का जो चीनी सम्राट है मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्षु धर्मरक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। उन्होंने अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, राइट। सो द भिक्षुस ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू द चाइनीज लैंग्वेज. दिस gave impetus to the spread of Buddhism in China. Later on, Buddhism also reached Japan, Korea and Vietnam. और अनेक उसके पश्चात चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म का प्रसार न ही केवल चीन में हुआ बल्कि जापान, कोरिया और वियतनाम ऐसे देशों में भी वहां तक भी ये धर्म पहुंचा। कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। द एंशिएंट किंगडम ऑफ फुनान इन कैम्बोडिया was established in the 1st century CE. Evidence is available from Chinese traditions that an Indian named Kaundinya established it. Okay. Now, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। नाउ कंबोडिया देश के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में हुई। चीनी परंपरा के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि फुनान की स्थापना
कौंडिन्य नामक भारतीय ने की। ओके, नाउ फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था और इस कालखंड का एक उकेरा हुआ शिलालेख उपलब्ध है। सो इससे ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख संस्कृत में है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय वंश के लोगों के छोटे छोटे राज्य उदित हुए थे। अब इन राज्यों के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। नाउ पीपल ऑफ नॉन न्यू द संस्कृत लैंग्वेज। अ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पीरियड इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. It is in Sanskrit. In many other countries of Southeast Asia too, small kingdoms established by people of Indian origin had emerged. These kingdoms helped to spread Indian culture in Southeast India. So, भारतीय संस्कृति का प्रसार इन दक्षिण पूर्व एशिया में होता रहा था. Now, Indian culture had a deep impact on the art and cultural लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. दक्षिण पूर्व एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है. डांस ड्रामास बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम टू इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे. राइट. सो रामायण महाभारत इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य और नाट्य लोकप्रिय है. This influence continued to increase over the years. In ancient period, the Buddhist religion spread to Myanmar, Thailand, Indonesia, etc. In the later years, temples of Lord Shiva and Vishnu were also built there. Now, दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया. प्राचीन समय में बौद्ध धर्म म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में भी पहुंच गया था. कालांतर में शिव और विष्णु के मंदिरों का भी निर्माण हुआ. नाउ दिस ईयर वी हैव रिवीव्ड इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 3000 BCE to 8th century CE. Next year we will study the history of India from the 9th century CE to 18th century CE. The history of period is known as medieval history. Now, इस वर्ष हमने ईसा पूर्व 3000 से ईस्वी सन 8वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी हमने प्राप्त की है इस बुक में, राइट, टेक्स्ट बुक में. अगले वर्ष हम इस ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के इतिहास का अध्ययन करेंगे. ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड के इतिहास को ही मध्ययुगीन इतिहास कहते थे. Okay, students. So today we learn our 11th number last lesson, Ancient India and the World. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.